Okay, beta. Good morning to all of you, beta. Today I am just going to start a new topic, that is what indeterminate forms. First, I will tell you what is the indeterminate forms. Now, how we are going to evaluate the value of limit with the help of the L'Hopital's rule. So I will explain you what is the L'Hopital's rule. Now, let us suppose there is a function that is what f of x that is equal to x square minus a square upon x minus a. Now put the value of x is equal to a. Now supposing that if someone is saying find the value of this function at x is equal to a, so what you will do first, you will put x is equal to a. Now that is what f of a, putting x is equal to a, you are getting f of a that is equal to a square minus a square upon a minus a. A square minus a square that is equal to 0 and a minus a that is equal to 0, that is what f of a. Value of f of a you are getting 0 upon 0. अब ये होता है कि इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे 0 upon 0 की वैल्यू. So actually this is called what indeterminate form, which is called what indeterminate form, which is indeterminate form, which is indeterminate form. 0 upon 0 की वैल्यू हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं. It has some value, but we cannot evaluate the values of 0 upon 0. So it is called what indeterminate form. Indeterminate का मतलब not determinate. इसकी वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते हैं. This is called what indeterminate form. So now if a function is taking the forms 0 upon 0 or infinity upon infinity for some particular values of x, then we say that the function is what, that is indeterminate at that values of x. f is equal to how much, that is 0 upon 0. तो क्या होता है, अब इसकी वैल्यू को हम एग्जैक्टली मैंने f of a that is taking 0 by 0, तो ये मत सोचिएगा कि 0 upon 0 1 होगा. जैसे कि होता है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं 5 upon 5 that is equal to 1, 7 upon 7 that is equal to 1, 9 upon 9 is equal to 1, so 0 upon 0 is also equal to. It is not like that. Because this 0 upon 0 that is indeterminate form, its value cannot be determined. So इसकी वैल्यू को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं. इसीलिए यहाँ पर जिस वैल्यू पर x इक्वल टू a पर इसका फॉर्म आ रहा है 0 upon 0, तो x इक्वल टू a पर हम इसकी वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं. यहाँ पर क्या होता है, मीनिंग आपने टर्म्स के पढ़े होंगे. दिस इज x इज इक्वल टू a. इसका मतलब क्या होता है, x इज एग्जैक्टली इक्वल टू a. x is exactly equal to a. एक और नोटेशन होता है, x is tending towards a. x is tending towards a. x is tending towards, what does it means, x की वैल्यू a के बहुत क्लोज में पहुंच रही है, लेकिन x की वैल्यू a के इक्वल नहीं है. it is very very close to a. very very close to a means what, there are two possibilities, either it is a little less than a or it is a little more than a. So now if for some particular values of x the function is taking the forms 0 upon 0, then it is called what, indeterminate forms. And there are 7 indeterminate forms. There are 7 indeterminate forms. In all there are 7 indeterminate forms. Now the first one is what, that is 0 upon 0. Second one is what, that is infinity upon infinity. Third one is what, that is infinity minus infinity. And fourth one is what, that is 0 into infinity. And fifth one is what, that is 0 to the power 0. And this is what, next one is what, infinity to the power 0. And last one is what, that is 1 to the power infinity. There are 7 indeterminate forms. In all, how many indeterminate forms are there? There are 7 indeterminate forms. Now ये indeterminate forms, they are not following ordinary rules of mathematics.
जैसे हम लोग कहते 2/2 is equal to 1, 5/5 is equal to 1, 10/10 is equal to 1, but 0/0 is not equal to 1, infinity is not equal to 1. We know 5 minus 5 is equal to 0, 3 minus 3 is 0, but infinity minus infinity, that is not equal to 0. So infinity minus infinity की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग नहीं निकाल सकते. Infinity क्या होता है? That doesn't exist. 0 इंटू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू भी नहीं निकाल सकती, जबकि ये कहा जाता है कि किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है. तो इन्फिनिटी को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी? नोबडी नोज अबाउट इट. So that is called what? Indeterminate forms. And you know this is what 3 to the power 0 is 1, 5 to the power 0 is 1, लेकिन 0 to the power 0 is not equal to 1, infinity to the power 0 is not equal to 1. या 1 to the 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पर 1 to the power infinity we cannot evaluate it. That is called what? Indeterminate form. Infinity का मतलब क्या होता है? It doesn't exist. जितना बड़ा से बड़ा नंबर आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ा क्या होता है? That is infinity. तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा. there are 7 indeterminate forms और इसीलिए क्या होता है, इस फंक्शन की वैल्यू x is equal to a पर नहीं निकाल सकते. when you are putting x is equal to a, it is what? 0/0. बट इसके क्लोज में इसकी वैल्यू क्या होगी? that we can evaluate it and it is called the limiting value of the function, and that you must have done in class 11th standard also. 11th में आपने किया होगा कि how you are going to evaluate this limit. लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए बहुत सारे फॉर्म है. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, रेशनलाइजेशन है. दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम. इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin h upon h इक्वल टू 1 होता है, या लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan h upon h इक्वल टू 1 होता है. बट एक और फार्मूला डेवलप किया. देयर वाज वन मैथमेटिशियन यल हॉस्पिटल्स. सो ही हैज गिवन वन रूल. इसको हॉस्पिटल मत करिएगा, यहाँ पर कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई चीजें नहीं है. नाम क्या है? यल हॉस्पिटल्स रूल. ओ के ऊपर 2 डॉट लगे होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा. दिस इज व्हाट? यल हॉस्पिटल रूल. कुछ लोग इसको लॉपिटल, कुछ लोग जो कुछ भी बोलना हो बोल जाते हैं. दैट इज व्हाट? हॉस्पिटल रूल. सो दिस इज नॉट द हॉस्पिटल रूल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? यल हॉस्पिटल्स रूल. सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस यल हॉस्पिटल रूल्स टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द लिमिट. So let us take that. जब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आ जाता है बेटा किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर, तो उस वैल्यूज पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू फाइंड आउट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इसलिए लिमिट की स्टार्टिंग वही होती है. तो पहले हम बात करते हैं यल हॉस्पिटल्स रूल. यल हॉस्पिटल्स रूल. ओ के ऊपर 2 डॉट होता है. हॉस्पिटल्स यल हॉस्पिटल्स रूल. व्हाट इज द यल हॉस्पिटल्स रूल? दिस इज व्हाट? यल हॉट. इसको हॉस्पिटल मत कहिएगा, दैट इज हॉस्पिटल नहीं है यल हॉस्पिटल रूल, दैट इज यल हॉस्पिटल्स रूल. नाउ व्हाट इज द यल हॉस्पिटल्स रूल? इफ fx and gx be 2 real valued function, be 2 real valued function, real valued function, and real valued function which are differentiable, which are differentiable, and g dash x is not equal to 0. If fx and gx be 2 real valued functions which are differentiable and g dash x is not equal to 0, such that limit x tending towards a, f of x that is equal to 0, that is equal to limit x tending towards a, g of x. Limiting value of fx when x is tending towards a, that is 0, and limiting value of gx when x is tending towards 0, then this is what? Then this is limit x tending towards a, f of x upon g of x that is equal to limit x tending towards a, f dash x upon g dash of x, where
एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और जी डैश एक्स का मतलब क्या है, दैट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स. So this is called the L'Hopital's rule. If fx, now you see here, if fx and gx be two real valued functions which are differentiable and d over dx of g, I mean d dash x, that is not equal to 0, such that limiting value of the function at x is tending towards 0, that is equal to 0, yeah, limit x tending towards a f x is equal to 0, limit x tending towards a gx is equal to 0, then the value of limit x tending towards a f x upon gx, that is equal to limit x tending towards 0, f dash x upon g dash x. What is f dash x? F dash x is representing differentiation of fx with respect to x, and g dash x is representing differentiation of gx with respect to x. यहाँ पर differentiation की help से हम problem solve करते हैं. हमने आपको बताया कि there are 7 indeterminate form. इसके proof की आपको जरूरत नहीं है. proof इसका बताया जा सकता है. इसके प्रूफ के लिए एक थ्योरम यूज होती है, दैट इज कॉल्ड मैक्लारियंस एंड टेलर्स थ्योरम. मैक्लारियंस एंड टेलर्स थ्योरम, दैट इज आई थिंक इन हायर क्लासेस, इन ग्रेजुएट लेवल वहां पर है ये, तो उसको आई थिंक यू डोंट रिक्वायर इट्स प्रूफ. इसको विदाउट प्रूफ इसका एप्लीकेशन आपको सीखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई L'Hopital's रूल, क्योंकि इसके प्रूविंग के लिए आपको मैक्लारियंस और टेलर्स थ्योरम की रिक्वायरमेंट होगी, और उससे आप बिल्कुल अननोन है, वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है. सो दिस इज द L'Hopital's रूल. नाउ जस्ट दिस इज द L'Hopital's रूल. एक चीज और ध्यान में रखिएगा, L'Hopital's रूल इज वैलिड फॉर, it is valid for 0 upon 0 and infinity upon infinity forms only. ये ध्यान में रखिएगा, L'Hopital's रूल जो है वो वैलिड होता है किसके लिए, 0 by 0 फॉर्म्स के लिए और infinity by infinity फॉर्म्स के लिए. अब यहाँ ये बात उठती है कि अदर फॉर्म्स हो तो क्या हम लोग L'Hopital's रूल लगाकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं. अगर अदर्स फॉर्म्स है तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करिए, या तो 0 by 0 फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, दोनों में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें बाय सिंप्लीफाइंग दैट, तो आप अब फिर जो है L'Hopital's रूल को अप्लाई कर सकते हैं. तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, L'Hopital's रूल इट इज वैलिड फॉर 0 by 0 फॉर्म्स एज वेल एज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स. फॉर अदर फॉर्म्स यू कैन नॉट अप्लाई इट डायरेक्टली. अदर फॉर्म्स की लिमिट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, जो अदर फॉर्म्स है उसको पहले हमें सॉल्व करके इस 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. देन वी विल बी इन पोजीशन टू अप्लाई द L'Hopital's रूल. So हम different varieties की आपको problems लेते हैं, and I'm just going to explain it in different forms of the problems how you are going to apply this L'Hopital's rule to solve it. तो लिमिट सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है, इसको आप अच्छे से समझ लो. इसकी प्रॉब्लम्स हम आपको करके दिखाते हैं. So this is L'Hopital rule, not hospital rule. यहाँ मेडिकल लाइन से कोई रिलेटेड नहीं है कि उसका मेडिकल से वो मैथमेटिशियन का नाम L'Hopital's rule. This is the rule given by L'Hopital's. So this is what I'm taking the problems. This is question number 1. Question number 1. That is what limit x tending towards 3. This is x to the power 4 minus. This is what 81 upon. This is x minus 3. And second one is what, that is limit x tending towards 0, x tending towards 0, it is what 8 to the power x minus 2 to the power x upon 4x. ये दो की वैल्यू हमें निकालना है. तो पहले हम इनको देखते हैं, चेक करते हैं ये कौन सा फॉर्म है. यहाँ पर देखिए, इतना से यहाँ पर देखिए, दिस इज व्हाट, x के प्लेस पर 3 पुट अप कर दीजिए, तो कितना आएगा, 3 to the power 4 minus 81 upon 3 minus 3, 3 to the power 4 बेटा क्या होता है, that is equal to 81 minus 81 upon 3 minus 3, 81 minus upon 81, that is 0 upon 0 हो गया. 3 minus 3 0 होगा, 81 minus 81 भी 0 होगा. तो ये कौन सा फॉर्म आया, 0 upon 0. तो यहाँ पर लिख दो साइड में, which is 0 upon 0 forms, which is 0 upon 0 form. इसका मतलब यहाँ पर हम लोग L'Hopital's रूल अप्लाई कर सकते हैं. L'Hopital's रूल क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है सेपरेटली.
फिर देखना है कि 0 बाई 0 फॉर्म रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, इसी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हमें रिमूव करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नाउ दिस यू कैन राइट व्हाट व्हेन यू आर अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। तो क्या हुआ, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब, और 81 कांस्टेंट है 0, और x का 1 हो गया, 3 का 0। हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, माने x पावर 4 माइनस 81 को डिफरेंशिएट किया। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो x पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4x क्यूब और 81 का 0। यहाँ x का कितना होगा 1 और 3 का क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 4x क्यूब अपॉन 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट अप करो तो 0 अपॉन 0 फॉर्म से इसमें से रिमूव हो गया, 0 upon 0 फॉर्म से रिमूव हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ x, you will get the value of limit, that is what, 4 into 32 whole cube, that is 4 into this is 27, this is equal to 108 and this is the required result। ये लिमिट आप फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें तो यहाँ एल हॉस्पिटल्स रूल से करना है, एक सिंपल टेक्निक निकाली गई है टू इवैल्यूएट इट। देखिए दूसरा वाला प्रॉब्लम्स लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, दिस इज व्हाट लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x अपॉन दिस इज 4x। अब इसमें भी x इज इक्वल टू 0 पुट अप करो बेटा, तो क्या आएगा, दिस इज a टू द पावर 0 माइनस 2 टू द पावर 0 4 into 0। 8 to the power 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, this is 0, so this is 0 upon 0, again it is 0 upon 0 form। That means what, here you can apply L'Hopital's rule। Why you can apply L'Hopital's rule? Because L'Hopital rule is valid for 0 by 0 forms or infinity by infinity form। So that is equal to what, we can say limit x tending towards 0। अब L'Hopital's rule है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर 8 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x। आपको ध्यान आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x इनटू log a। यहाँ a के प्लेस पर कितना है 8, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 8 to the power x into log of 8। बेस नहीं मेंशन है तो आपको पता ही है, we used to take the e as the standard base। now 2 to the power x का क्या होगा, 2 to the power x into log 2 to the base e अपॉन ये हो गया 4x का कितना हो जाएगा, that is equal to 4। अब देखो 0 बाई 0 फॉर्म्स खत्म हो गया, हमें लगता है खत्म हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में तो x है ही नहीं है, जब x नहीं है तो ये तो 0 आने का सवाल ही नहीं होता। अब न्यूमरेटर को और चेक कर लो, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 टू द पावर 0 into log of 8 माइनस 2 टू द पावर 0 into log 2 अपॉन कितना हो गया, दैट इज 4। अब यहाँ पर 8 पावर 0 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 into log 8, दिस इज log 8 and 1 into log 2 दैट इज log 2 अपॉन 4 हो गया। और log m माइनस log n क्या होता है बेटा, log m अपॉन n। log आपको पढ़ना पड़ेगा, हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, तो वर्मा सर मैथ्स एकेडमी पर आप जाइए और सर्च करिए, आपको 2 वीडियो मिलेंगे log पर, वहां पर काफी डिटेल में आपको log एक्सप्लेन किया गया है, वो आपकी काफी हेल्प करेगा। log m माइनस log n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज log m अपॉन n दैट इज 8 अपॉन 2 अपॉन 4 हो गया। नाउ दिस इज 1 अपॉन 4 log ऑफ दिस इज 8 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4। आप चाहो तो यही छोड़ दो आंसर, लेकिन और थोड़ा सा सॉल्व कर दो, उससे पता लगेगा कि आपको log आता है। दिस इज 1/4 log 4 can be written as 2 to the power 2, पावर पहले आ जाती, log m to the power n that is equal to n log m, so it is equal to 2/4 times of log of 2, ये 2 हो जाएगा, so it is 1 upon 2 log 2 and this is the required result। I think ये समझ में आ गया होगा। So let us take one more problems। डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। बेसिक चीजें अगर आपको आएंगी तो कहीं भी बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। प्रॉब्लम वही होती है बेटा, कहीं आप फार्मूला भूल गए, कहीं आपने जो है लॉग अप्लाई करना नहीं आ रहा, तो इसको अच्छे से, तो लॉग के लिए जो है हमारी 2 वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें काफी हद तक एक्सप्लेन किया गया है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 is what, that is a limit x tending towards 0, this is 2 times of tan inverse x minus x upon
दिस इज 2x माइनस इट इज साइन इनवर्स x। अब इसको इवैल्यूएट करना है। एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लेते हैं। दैट इज व्हाट लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इट इज log of 1 minus x upon this is 10 pi x upon 2। चलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखिए ये कौन सा फॉर्म है। फॉर्म पता करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 0। जब आपने यहाँ पर 0 पुट अप किया तो आएगा 10 इनवर्स 0। 10 इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0। और यहाँ पर 0 तो 0 माइनस 0 तो न्यूमरेटर क्या हो गया, दैट इज 0। और डिनोमिनेटर में ये भी 0 हो गया। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, x के प्लेस पर 0 पुट अप करेंगे। ये कौन सा फॉर्म हुआ, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब ये है कि हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। व्हाई वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल, बिकॉज इट इज वैलिड फॉर 0/0 फॉर्म्स एंड infinity फॉर्म्स। तो 0/0 फॉर्म्स है, देन वी कैन अप्लाई दिस एल हॉस्पिटल्स रूल। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, पहले क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक बार अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया फिर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो देन अगेन यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल। जब तक वो 0/0 फॉर्म्स रिमूव नहीं हो जाता है तब तक आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते रहेंगे। 0 माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर। जरूरी है कि एक बार डिफरेंशिएट करने में ही 0/0 फॉर्म्स रिमूव हो जाए, तो हो सकता है 2 बार, 3 बार, इवन 4 बार भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस इज 2/1 प्लस x स्क्वायर। x का कितना होगा, 1/, दिस इज 2 साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट अप करो, तो 2/1 प्लस 0 माने 2, 2 माइनस 1, तो 0/0 फॉर्म्स तो रिमूव हो गया, तो वैल्यू पुट अप कर दो। दिस इज व्हाट 2/1 प्लस 0 माइनस 1/2 माइनस 1/√1 माइनस 0। सिंप्लीफाई करो, सो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन दिस इज 2 माइनस 1 दैट इज 1/1, सो इट इज इक्वल टू 1, और यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल्स रूल हम लोग अप्लाई तब तक करते रहते हैं जब तक कि 0/0 फॉर्म्स या infinity फॉर्म्स रिमूव नहीं हो जाता, उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 log 1 minus x upon 10 pi x by 2, x के प्लेस पर 0 पुट अप करिए, क्या आएगा, log 1 minus 0। log 1 minus 0 का मतलब log 1 होगा, और log 1 की वैल्यू किसी बेस पर क्या होती है, हमेशा 0 होती है, सो दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट अप करोगे 10 pi x by 2, तो क्या हो जाएगा, 0 into pi by 2 दैट इज 0, और 10 0 की वैल्यू भी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 0, तो ये भी हो गया 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म्स हो गया तो यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो यहाँ log 1 माइनस x का क्या होगा, 1/1 माइनस x। चेन रूल अप्लाई करो, 0 माइनस 1, बिकॉज दिस इज फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। 10 pi x by 2 का क्या होगा, दैट इज sec स्क्वायर pi x by 2, और pi x by 2 का क्या होगा, दैट इज pi by 2। आई थिंक 0/0 फॉर्म्स रिमूव हो गया। x के प्लेस पर 0 पुट अप करोगे, 1/1 माइनस 0 दैट इज 1। यहाँ पर क्या, यहाँ पर पुट करोगे तो sec स्क्वायर 0 आएगा, और sec 0 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/1 माइनस 0। जब ये वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये लिमिट रिमूव हो जाएगी, लिमिट हट जाएगी, so that is equal to how much, this is sec square 0 into it is pi by 2, ये कितना हो गया, -1 upon this is pi by 2, 2 will go in numerator, so that is -2 upon pi, and this will be the required result। ये numerator में कैसे आया, देखिए -1 है upon this is pi upon 2, -1 को 1/1 लिख लेंगे, ये 2 that will go in numerator and this 1 will come in denominator। मेन रूल क्या है, that is p upon q upon x upon y, y will go in numerator and q will come in denominator। तो ये रूल्स आप ध्यान में रखिएगा, लॉज ऑफ इंडिसेस मेन क्लास 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाता है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं बेटा।
So let us take the next problem, that is what, fifth one. Fifth one is what, that is question number 5. Question number 5, that is limit x tending towards 0. This is x square plus 2 cos x and minus 2 upon. This is x times of sin cube x. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए थोड़ा सा अगर लिमिट का कंसेप्ट आपको पता है तो उसकी हेल्प ले लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिस इज व्हाट, हमें क्या 0/0 फॉर्म से x के प्लेस पर 0 पुट अप करो तो ये कितना हो गया 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 हो गया, 2 - 2, ये टोटल न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, डिनोमिनेटर भी क्या हो गया दैट इज इक्वल टू 0, 0/0 फॉर्म्स है। तो इसमें अगर हम डायरेक्ट एल हापिटल्स रूल अप्लाई कर देंगे जो कि यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या है sin क्यूब x, इसको सॉल्व करेंगे तो बार बार जो है sin क्यूब x फिर cos क्यूब x ऐसे कन्वर्ट होता जाएगा, तो वो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, पता नहीं कितनी बार में रिमूव होगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। दिस इज व्हाट, एक आपने लिमिट पढ़ी होगी, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin h अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा होगा। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin h अपॉन h इज इक्वल टू 1, या एक और पढ़ा होगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 दैट इज 10h अपॉन h इज इक्वल टू 1, ये क्लास 11th में आपने किया होगा। इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x स्क्वायर प्लस 2 cos x माइनस 2, यहाँ पर हो गया x इंटू साइन x अपॉन x का होल क्यूब। उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने x क्यूब से डिवाइड किया, जितने से डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम में चेंज आ जाएगा। तो ये चीज कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x स्क्वायर प्लस 2 cos x माइनस 2, ये हो गया x, इसकी वैल्यू हो गई 1 और ये हो गया x क्यूब। अब यही प्रॉब्लम कन्वर्ट होकर के आ गया, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x स्क्वायर प्लस 2 cos x माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 4। देखिए हमने क्या किया, यहाँ sin क्यूब x है तो यहाँ पर x क्यूब भी होना चाहिए, तो x क्यूब से डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई किया, sin x अपॉन x when x is tending towards 0 by this formula its value is equal to how much 1, और x into x क्यूब मल्टीप्लाई होकर के x पावर 4, x पावर 4 को 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार जितनी बार भी डिफरेंशिएट करना आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। x पावर n का फार्मूला मालूम है, उसमें प्रोडक्ट भी नहीं लगना है। यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएट करते तो आपके लिए कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, और कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता, कहीं एक जगह मिस्टेक्स हो जाती तो पूरा पूरा प्रॉब्लम चला जाता। इसलिए बेटा इसको ध्यान में रखिएगा, जहां आपको ऐसे साइन की पावर मिले या 10 की पावर मिले पहले उसको कन्वर्ट कर लो, फिर आप एल हापिटल्स रूल अप्लाई करो। अब देखो ये 0/0 फॉर्म से है, यहाँ पर क्या है दैट इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो, एल हापिटल्स रूल अप्लाई करो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स x स्क्वायर का कितना होगा 2x, cos का क्या होगा माइनस sin x तो माइनस 2 sin x, और इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट अप करो, न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, यहाँ 0 होगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ x के प्लेस पर पुट अप करोगे डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा, तो ये अगेन क्या है 0/0 फॉर्म। फिर हम ये एल हापिटल्स रूल को रिपीट कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2x का क्या होगा 2, sin x का क्या होता है cos x, 2 टाइम्स ऑफ cos x, इसका क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर, x के प्लेस पर 0 पुट अप करो, फिर क्या आएगा 2 - 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 - 2 0 हो गया, ये फिर 0/0 फॉर्म्स आया। चलो भाई फिर सही, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर एल हापिटल्स रूल अप्लाई करेंगे, और तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि 0/0 फॉर्म्स रिमूव नहीं हो जाता। जहां पर 0/0 फॉर्म्स रिमूव हो गया बस वहीं पर स्टॉप करके वैल्यू पुट कर देंगे x की, वी विल गेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फिर ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस 2 sin x अपॉन ये कितना हो जाएगा 24x, 2x स्क्वायर का 2x, 2x into 12 दैट इज 24x, फिर 0/0 फॉर्म से फिर अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos x अपॉन 24। अब हम कह सकते हैं 0/0 फॉर्म से रिमूव होगा, कैसे पता चल गया कि 0/0 फॉर्म से यहाँ पर रिमूव हो गया,
क्योंकि डिनोमिनेटर में 24 है और उसकी वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो 0 आएगा नहीं, वो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी 24, ये हमेशा 24 होगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, बस वैल्यू पुट अप कर दो, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos 0 अपॉन 24, दिस इज 2 into cos 0 1 होता है 24 हो गया, दिस इज 12, तो इसकी वैल्यू निकल करके आई 1 अपॉन 12 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जहां भी साइन की बहुत ज्यादा पावर हो वहां पहले उसको रिमूव कर लिया करो बाय द फार्मूला लिमिट एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin h अपॉन h इज इक्वल टू 1 से। इस टाइप से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कहीं भी आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप डिफरेंशिएट करके अगर डायरेक्ट भी करते तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ द कॉम्प्लिकेशन यू जस्ट टेक help of this limit is tending to 0 sin h upon h. Now I'm taking some more problems, that is what I'm taking this 2 more questions infinity by infinity form for infinity by infinity form. One is what, that is limit, question number 6, that is limit x tending towards 0 plus, this is log of sin x upon this is cot x. And next one is what, question number 7, that is equal to limit x tending towards infinity, this is e to the power x plus 3x cube upon 4e to the power x plus this is 2 times of x square. इनकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। देखिए इनकी वैल्यू हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट वन, लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस, भैया इसका क्या मतलब हुआ 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट at x is equal to 0 और 0 माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 0. I think you must have studied about left hand limit and right hand limit, and for the existence of the limit, left hand limit and right hand limit both should exist finitely and their values should be equal. तो यहाँ पर अच्छा, अगर यहाँ पर निगेटिव हो जाता तो क्या होता, अगर मान लीजिए माइनस 0 होता, ये निगेटिव साइन माइनस 0, तो ये वैल्यू माइनस में आती और माइनस नंबर लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर, इसीलिए जो है 0 प्लस 0 नॉट इवन नॉट 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा का मतलब साइन x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज पॉजिटिव। अगर 0 से थोड़ा सा छोटा हो जाता तो साइन x की वैल्यू क्या हो जाती, दैट इज नेगेटिव। log is not defined for the negative number, for the existence of the log it is necessary जिस नंबर का log आप निकाल रहे हैं that should be positive, और बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो log को बहुत अच्छे से पढ़िए, हमारे वीडियो को देखिए, 2 वीडियो हमने log पर अपलोड किए हैं और उसको देखिएगा, एक एक चीज उसमें हमने एक्सप्लेन किया है और आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा। तो यहाँ पर log x इसीलिए 0 प्लस लिखा गया है कि sin x की वैल्यू अगर 0 माइनस होता तो sin की वैल्यू नेगेटिव, माने लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट हैंड लिमिट के लिए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज व्हिच फॉर्म, अगर x की वैल्यू हम 0 पुट अप कर दें तो क्या आएगा, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0। जब साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगा, log ऑफ 0 हो जाएगा। और log 0 की वैल्यू क्या होती है, यहां पर बेस नहीं मेंशन तो हम क्या ले रहे हैं, दैट इज e। log 0 टू द बेस e, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, और cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, सो दैट इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म्स। I've already told you this L'Hopital rule is valid for 0 by 0 forms and infinity by infinity form. तो 0 by 0 हो या infinity by infinity, we can apply here L'Hopital's rule. L'Hopital's rule apply करने के लिए what you are supposed to do, you will just differentiate numerator and denominator separately and try to remove this infinity by infinity forms. देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, that is limit x tending towards 0 plus log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 upon sin x, और sin x का क्या होगा, cos x। अब cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता, that is minus of cosec square x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec, माने स्टैंडर्ड फार्मूले याद रखिएगा, नहीं तो हर स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ये ध्यान में रखिएगा।
वो आपके टूल्स हैं, उसके बगैर तो आप बिल्कुल नहीं। अगर आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो समझ लो सारी चीज़ों से तैयार होना चाहिए, गन होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए आपके पास, तभी आप जो है लड़ पाएंगे। अगर आपके पास फार्मूले नहीं है तो आप कहाँ से लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास तमाम सारी चीजें, हथियार वगैरह होने चाहिए। उसी टाइप से यहाँ पर भी ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी आपको डिफरेंशिएशन या जो फार्मूले की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, तो ये हो गया दिस इज cos x अपॉन sin x अपॉन, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, cosec स्क्वायर x क्या होगा? 1 अपॉन sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x will go in numerator and this sin स्क्वायर x, this sin x will come in denominator, या इसकी एक पावर कैंसिल होगी, that is equal to limit x tending towards 0 plus minus sin x into cos x हो गया। साइन 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म्स तो माने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स तो रिमूव हो गया, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो बस यहाँ पर फॉर्म रिमूव हो गया। वैल्यू सॉल्व कर लो, माइनस साइन 0 इंटू दिस इज cos 0, इसकी वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू 1, सो दैट इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e टू द पावर x प्लस 3 e टू द पावर 3x क्यूब अपॉन 4 e टू द पावर x अपॉन प्लस 2x स्क्वायर। अब ये पता करो भैया कौन सा फॉर्म है। इस फॉर्म को पता करने के लिए देखिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, e टू द पावर x प्लस 3x क्यूब दैट इज इक्वल टू e टू द पावर इनफाइनाइट प्लस दिस इज 3 इंटू इनफाइनाइट का होल क्यूब, e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है, जैसे 0 और 1 के बीच में है, तो उसको पावर जितनी बढ़ती जाएगी वैल्यू कम होती जाएगी, पावर लार्जेस्ट होगी तो वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी। लेकिन अगर वही वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने x इज इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, हमने x इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो या दिस इज व्हाट 2 टू द पावर x ले लिया। अगर x के प्लेस पर 1 पुट अप करेंगे, x इज इक्वल टू 1, तो ये 2 की पावर 1 होगा 2 होगा, x इज इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे 2 की पावर 2 कितना आएगा 4 आएगा, x के प्लेस पर 3 पुट अप करेंगे 2 की पावर 3 कितना आएगा 8 आएगा। अगर x की पावर मान लो दिस इज व्हाट 3 4 5 पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज व्हाट 2 टू द पावर 5, 2 पावर 5 का मतलब 30। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है 2 की पावर x की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब अगर x की पावर इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब 2 की पावर इन्फिनिटी होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इन्फिनिटी। जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, जब पावर सबसे लार्जेस्ट होगी तो वैल्यू भी सबसे लार्जेस्ट होगी। अब यहाँ पर हम ये कैसे कह सकते हैं, e की पावर इन्फिनिटी, e की वैल्यू क्या होती है 2 और 3 के बीच में, वैल्यू ऑफ e दैट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 एंड 3, और 2 एंड 3 का मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी पावर जो इन्फिनिटी होगा वो भी इन्फिनिटी होगा और ये भी इन्फिनिटी होगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इन्फिनिटी। हमने बताया था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, बट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दैट इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक वैल्यू हमने आपको बताई log 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और e टू द पावर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये सारी वैल्यूज ध्यान में रखिएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, ये वैल्यूज आपको काफी हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज व्हाट इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो गया। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म्स हो गया। तो व्हिच फॉर्म इज देयर, दैट इज व्हाट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म्स हो गया। और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, दिस L Hospital rule is valid for 0/0 forms as well as infinity/infinity form. Okay, you just apply this L Hospital's rule, that is equal to limit x tending towards infinity, differentiate करिए e to the power x plus this is what e to the power x plus this is equal to 9 into x square upon this is 4 e to the power x plus this is 4x। फिर वही इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म्स आया, फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म्स आया, तो फिर इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, सो दैट इज इक्वल टू e to the power x and this is equal to what,
18x, x स्क्वायर का 2x होगा, दिस इज व्हाट 4e टू द पावर x, ये कितना हो गया 4। फिर क्या हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी में कोई चीज ऐड कर दो या इन्फिनिटी में से कोई चीज डिलीट कर दो, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आता है। सो दिस इज अगेन यू अप्लाई, दिस इज यल हॉपिटल्स रूल, इट इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 8 हो गया अपॉन दिस इज 4e टू द पावर x प्लस 0। फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, फिर इसको अप्लाई करिए, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, दिस इज व्हाट e टू द पावर x प्लस 0 अपॉन 4e टू द पावर x। अब यहाँ पर रिमूव हो गया, e टू द पावर x से e टू द पावर x क्या हुआ, कैंसिल। we are not saying that x is equal to infinity, we are saying that x is tending towards infinity, so e की power x can be cancelled by e की power x, that is 1 upon 4, and this will be the required result. So these are the problems based on 0 by 0 and infinity by infinity forms. There are 5 other forms also. This is what infinity minus infinity, 0 into infinity, and infinity to power 0, 0 to the power 0, and 1 to the power infinity. There are other 5 forms जिसमें L'Hopital's rule डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता है। उसमें क्या होता है, पहले हम अगर इन पांचों फॉर्म में से कोई फॉर्म्स आता है तो हम पहले उसको सॉल्व करके we are just going to convert it either 0 by 0 forms or infinity by infinity forms, फिर जो है उसको हम लोग L'Hopital's रूल अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले वाले में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, इसलिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जैसे दिस इज व्हाट दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पार्ट 2, तो उसमें हम आपको बाकी जो 5 टाइप्स के हैं उसकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि उसमें L'Hopital's रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे। वैसे उनके लिए L'Hopital's रूल वैलिड नहीं होता, तो उसको सॉल्व करके 0 by 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में पहले आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे, फिर कन्वर्ट करके दिखाने के बाद L'Hopital's रूल अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले आप कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, सर्च करके सेकंड वीडियो आपको मिलेगा। तो सेकंड वीडियो में जो है रिमेनिंग 5 फॉर्म्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स हम आपको करने जाएंगे। ओके बेटा, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, बाय।